मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना और सुनते बंदी बना लिया गया और उन्हें 5 साल तक जेल में रखा गया, जिस दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
most respected chief guest of today's Independent Morning, Colonel Atul Tikavade, Honorable President of Arya Samaj Group of Schools, Shri Rakesh Jain ji, Manager of Arya Samaj, Captain V.K. Syal ji, Manager of Arya Model Senior Secondary School, Shri Vyas Bambi ji, Director of Arya Samaj Group of Schools, Dr. Paramjit Kaur, distinguished guests of management, my co-principals, guests, and my dear teachers of Arya Samaj Group of Schools, a very cheerful and independent morning. Before I start saying anything, I want to thank Director Ma'am for one thing. Ma'am, this is the platform where I started my career as a teacher. And I remember I was the one who was doing anchoring of Independence Day program. And on same day at same platform, I am standing here in front of you as principal addressing the audience. So it's a great opportunity for me. Thank you so much, ma'am. बहुत ही सम्मान, गर्व और अभिमान की बात है. We have completed 77 years of independence, and today we are celebrating the 78th day, that is Independence Day of our free India. When India got independent, at that time Secretary of the State was V.P. Menon ji, and Sardar Vallabhbhai Patel was Home Minister. V.P. Menon ji stated one of his write-ups that once Sardar Vallabhbhai Patel called me and said, V.P. Menon, मैं आपको एक काम देकर जा रहा हूँ. क्या काम था वो? उन्होंने कहा, आपने इस आज़ादी को हमने कैसे पाया है, ये सब कुछ देखा है, कितना संघर्ष हमने देखा है, तो मैं आपको काम दे रहा हूं कि आपने ये धरती छोड़ने से पहले एक बुक लिखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. आपने जूनागढ़ का भी हाल देखा है, आपने हैदराबाद का हाल देखा है, आपने कश्मीर के दुख को भी झेला है. So no one can better understand than you. So write this book, Integration of States. Then he said, write one more book, Transfer of Power to India. क्योंकि ये इतना आसान नहीं था. क्यों उन्होंने कहा? ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इसको समझ सके कि जो आज़ादी हमने पाई है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी. क्योंकि मेनन जी ने 3 वायसराय के साथ काम किया था, उन्हें ये सब कुछ पता था. V.P. Menon ji passed away in 1965, but before he passed away, he wrote these 2 books, and I think we all must read these books to understand the value of independence, to maintain this independence and patriotism. I have my wish that in school education, patriotism must be taught. We always talk about our students should do like this, our students should do like this, but are we teaching them patriotism in school? So I wish that it should be taught in school as curriculum so that we can inculcate the feeling of patriotism in our students right from the childhood age. A Chinese philosopher, Hu Xi, the name of the philosopher is Hu Xi. He was president of Peking University, chancellor of Beijing University, and China ambassador in America from 1938 to 1942. In 1937, Harvard University called him to address audience on the completion of 300 years of the university. को आगे बढ़ाते हुए दिलों को जीतने का काम करते रहना है. यही हमारी कोर कॉम्पिटेंस है इंडिया की और यही हमारी कोर स्ट्रेंथ है. इफ यू रिमेंबर, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे हमारे देश में एक बहुत अनाज की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड ही रिक्वेस्टेड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू लीव मील ऑफ वन टाइम, कि एक टाइम का अन्न आप छोड़ दो, सो दैट हमारे पूरे भारत के लोगों को खाना मिल सके. एंड बिलीव मी, उस समय सबने एक टाइम का अनाज छोड़ दिया था. तो ये ताकत है कि हम लोग राष्ट्र एकता में बिलीव करते हैं, राष्ट्र भाव हम सबके अंदर है.
इसी की एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 2020 में जब कोविड था, मोदी जी आए, उन्होंने क्या बोला? थाली बजाओ, कैंडल जलाओ। क्या था उससे? क्या कोरोना ठीक होना था? लेकिन हम सब ने थाली भी बजाई। किस किस ने बजाई थी? हम सब ने। कैंडल भी जलाई थी। वो क्या था? वो हमारा राष्ट्रभाव था, देश प्रेम था, और हम अपने लीडर की इस बात पर बिलीव कर रहे थे कि जो वो कह रहा है उससे कुछ ना कुछ तो हमारा भला होना ही वाला। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट करी है कि ये जो हम राष्ट्रभाव की बात करते हैं, ये हम अपने बच्चों में भी डाल सके शुरू से। एक और बात मैं आपको बहुत अच्छी बताती हूं। हिंदी के पोएट्स हैं कविता तिवारी जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइंस कुछ लिखी हैं इंडिया के बारे में। विभीषण जी को हम सब जानते हैं, हनुमान जी को भी हम जानते हैं। दोनों ही क्या थे? श्री रामचंद्र के भक्त थे। बट श्री हनुमान चंद्र को हम सब पूजते हैं, हनुमान जी को, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, उनके मंदिर भी बने हुए हैं। पर आप मुझे बताओ, क्या हम में से कोई है वो विभीषण जी की पूजा करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो देशद्रोही थे, और देशद्रोही चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो जाए, कोई भी उसको नहीं पूजता। हम सब, अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई चीट करता है, तो हम क्या कहते हैं? ये विभीषण वाली बातें मत करो। तो हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि उनको हनुमान जी की तरह वफादार रहना है, देशभक्त बनना है, देशद्रोही नहीं बनना है। रीजन इज, जहां के हो वहीं के रहो, वहां के लिए वफादार रहो। तो ये फीलिंग हमें अपने बच्चों में डालनी है। जब हम बच्चों में ये पैट्रियोटिज्म की फीलिंग डालेंगे, तो आई बिलीव जो हमारे बच्चे आज की डेट में, लाइक माय फेलो प्रिंसिपल अनुजा आल्सो नरेटेड अबाउट ब्रेन ड्रेन, कि जो बच्चे हमारा कंट्री छोड़कर पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, जब उनमें ये पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आ जाएगी, दिस इज माय कंट्री, आई हैव टू वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ माय कंट्री, बिलीव मी, वही सिटीजन्स हमारे इंडिया में रहेंगे, इंडिया के लिए काम करेंगे, एंड वन डे अगेन यू विल सी कि भारत सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। So with me, you all have to pledge, we have to train our students to work for India, to think for India, and to have this feeling, my nation first, and believe me, वो दिन नहीं जब इंडिया दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसी के साथ आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के इस 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।